Good afternoon. Am I audible? Hello. Am Am I I audible? audible? I think there is an echo problem. Yes, sir, you are very much audible. You may start. Yes. There is an echo problem. We can, sir, clearly hear you. I guess it is from your end. Kindly check. Can I start? Yes, sir. Yeah. Good afternoon, respected seniors and professional colleagues. I, CA Rohit Mittal, welcome all of you to the 80th series of webinar on theme Grow Your Practice, which is being organized by the Committee for Member in Practice of ICAI. Dear all, under the leadership of our President CA Ranjit Kumar Agarwal ji, Vice President CA Charanjot Singh Nanda ji, Chairman CMP ICAI CA Dr. Rohit Ruwadia ji, and Vice Chairman CMP ICAI CA Umesh Sharma ji. Committee for Member in Practice is working really hard for the upliftment of profession and growth in the practice of members. Apart from organizing regular webinars, Committee for Member in Practice is hosting Practice Ki Pathshala. And I am delighted to share that from 2nd August, 6th batch of Practice Ki Pathshala is scheduled at Center of Excellence, Jaipur. Dear all, committees also come up various audit tools, practice management software, and various schemes for members. You all are requested to go through the website cmpbenefits.icai.org to have a complete walk around of all schemes available for the members. Dear, now to take the opportunity to call upon CA Rohit Ruwadia ji for his welcome address. Over to Rohit sir. Sir, I guess sir is busy right now. So you may start with the topic. No problem. Rohit Ruwadia is now busy. So now it's time to go ahead with our today's session on mastering ITR filing for salaried heavy income from India and RUCU ESOPs from foreign country. Dear all, in this competitive world, we have seen various multinational companies are coming up with giving ESOPs, RSUs to their employees. Giving such benefits encourages employees to stay with the company for longer period. By owning a stake in the company, employee interest gets more aligned and they work harder for company success. Employees feel more motivated and engaged knowing their efforts directly contribute to the company performance and their personal financial gain. Dear all, such engagement of companies again raise professional opportunities, and in order to convert such opportunity into reality, we are honored to have amongst our eminent speaker, CA Pranay Bafna ji, who is a chartered accountant by profession and founder of Jurotax Pranay and Bafna Company. He has a strong background in the financial analysis, accounting, and portfolio management. He has expertise into providing tax consultancy and compliance services to individuals, attracting provision of DTA with the focus on optimizing tax liabilities. And he also provides consultancy to salaried class people in ITR filing with respect to ESOPs, RSUs, and other foreign assets. Further, Mr. Pane has been the editor of CA Club India website, and he has been speaker at various institutions such as IIT Madras, An Academy, etc. With this, I am deeply honored to welcome CA Pranay Bafna. Over to CA Pranay sir. Thank you, Rohit, for such a beautiful description. Okay. So, yes, give me a minute. I'm just sharing my screen. Okay. Yes, I'm able to share it now. Fine. So, like, I guess there are like around, uh,
So yes, let's start with the thing then. Okay. So basically, what I will be going through today's session will be like the presentation of like how we file the return for the people having income from India as well as foreign country. Okay. Fine. So there are many individuals yes, this is basic session relating to your ITR filing there. Okay, wherein we will be like guiding you. I will be guiding you like how to file the ITRs of the people who are getting income from India as well as foreign country. Okay, so this is the basic session wherein I will be guiding you and will be like throwing light on the provisions of how you can master the ITR filing of salaried people having income from India as well as they are having some RSUs and ESOPs from foreign country and how to take a benefit of DTAA. Okay, this is a very niche area of practice. Many people aren't aware that there is a kind of such practice wherein we can earn a lot of money therein. Okay, this is a very niche area of practice. Okay, considering the importance and the knowledge of these things. Okay, like there are very limited CAs who are aware of these things. Okay, so like I personally got call from Umesh Sharma sir. Okay, he's the CCM there, and he told me like, Pranay, you are doing very great. Okay, so please can you throw some light on the area of practice which you have opted. Like it's a complete new area of practice. Okay, so I will give you brief about why this area is completely a new area and like why many people are like this is like a area wherein you can sit in your office and you can grab the clients of the entire world. Okay, not India, entire world. Okay, so what exactly is that? I will give you a brief about. Okay, see, if you're filing a normal ITR of a salaried class person, okay, as per ICAI the minimum fee should be like 5,000 rupees. It has been given in the schedules of the ITRs. Okay, but I bet on that thing. Like we guys are not doing that thing. We are responsible for cutting down the rates. Okay, we are responsible for like giving the lower rates to the clients. Okay, and we have given them the habit of if we are filing a normal salaried ITR. Okay, what charges we are charging? It's roughly 1.5K we are charging. It doesn't suits to our fraternity then. Okay, what we are charging. Okay, and the most disgusting things we are observing is like basically like people are not inclined towards saving their taxes. They are more inclined towards like getting the refund. The first question is before sharing the form 16 they ask for, Mr. Mera refund kitna aayega. Okay, so like itna like it's a really weird way of practice that has been started. Okay, so like considering that thing, okay, I felt that like this is not an area of practice. Okay, area of practice can be a very niche. Okay, so I personally started looking into like कि कैसे practice को grow किया जा सकता है. So I started finding people who are having salaries from India as well as like US. Okay, so for example, I will give you what kind of clients we gonna cater. Okay, if you're going through this session, we can learn that in which types of clients you can cater. Okay, how you can grow your revenue sources and all those things. Okay, so basically, what kind of clients we gonna cater is like the person's having salary, okay, and also like RSUs and ESOPs. Okay, there is a market size of roughly around 50 lakhs people who are fitting in this category. Okay, and the CA knowing these details are hardly like 500 to 600 CAs are being aware of these provisions of Form 67 claiming the benefit of DTAA. Okay, other than MNCs, the individual CAs who are practicing, okay, they aren't aware of these things. Okay, these are very simple things, and wherein we can increase our scope of practice and start in like earning like anything therein. Okay, so let's start with so mastering the idea filing of salary, having income from RSUs from foreign country, and taking benefit of DTAA. Okay, so the roadmap of presentation will be understanding the ITR filing processes for the salaried professional with foreign income. Okay, so how we gonna do this thing? Okay, like basically if a person, I will give you an example. Okay, so like there are many people who are having income from foreign as well as India. Okay, for example, I will give you an example, the MNC employees. Okay, a person, a software engineer who is working into Google. Okay, so there are two components he is getting in his salary. Okay,
First component is his like basic salary, and second component is his the like perk visits there. Okay, so these are the two things he is getting. Okay, so 17.1 is the basic salary wherein he'll be getting the allowances and all those things, and 17.2 is the perk visits. Okay, so what are the perk visits? Perk visits basically means the things that are not given in the cash. Okay, these are in kinds. Perk visits basically means things given in kind. In kind they get shares, they get ESOPs. These are the two things they get. Okay, ESOPs are not classified as in perk visit, but we will see at a later stage how those come into perk visits. Okay, so basically these guys get RSUs. Okay, RSUs are basically the stock units. Just for example, if you're working in ITC, okay, so along with ITC the company gives you the shares in the form of perk visits. ओके, तो सैलरी तो मिलता ही है, उसके अलावा आपको जो है यू गेट सम शेयर्स आल्सो. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स यू गेट इन योर कंपोनेंट. ओके, तो बेसिकली स्टार्टिंग विद the Google employee who is having a salary of 50 lakh rupees. Okay, he has an additional component of 50 lakhs that is from his perquisites, that is shares. तो उसको shares मिल रहे हैं, उसको और salary मिल रही है. Okay, ये shares जो उसको मिलते हैं इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस होता है. ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देयर आर 4 5 compliances we need to do if he's getting for perquisites from foreign country. The first thing is like he need to file an FA schedule, that is foreign asset schedule, which is a mandatory thing he needs to do. Okay, second is he need to file form 67 if he's getting dividend on all those things. Third and the most important thing, he needs to report all the assets in the FS schedule. Okay, so we're gonna go one by one. Okay, so roadmap of today's presentation will be roughly around like we will be first understanding the ITR filing process for salaried professionals with foreign income. Secondly, we're gonna explore the implications of RSUs and ESOPs. Okay, and discuss the benefit of DTAA. ठीक है, ये प्रैक्टिस अगर किसी ने फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी उसको लोकलाइट क्लाइंट्स की जरूरत नहीं रहेगी. ओके, ट्रस्ट मी. ओके, I personally started my practice. I started my practice like 1.5 years back. Okay, did the specialization in things. Okay, and like it is the niche area. No CA is doing the practice. Okay, in this area. Okay, so what is the ITR process for salaried profession with foreign income? Okay, so as I told you, every person who is getting salary from foreign company gets two components. One is the cash component and another is perquisite component. Cash components are the basic thing. Perquisite component, that is 70 into as per salary. There is like the salary is being credited in the account in the form of shares. Okay, and these shares are being held in the foreign depository demats account. Okay, this is for example in India, if you get shares, okay, where are they being accounted for? They are being accounted for in Zerodha. They are being accounted into your Grow account. They are being accounted into your Motilal Oswal account. These are the demat accounts wherein these shares are getting reflected. Okay, but if a foreign income is getting credited to the Indian individual who is having salary from Indian company. Okay, for example, Google has set up his entity. Google Inc. has set up its entity in India called Google IT Services Private Limited. Okay, Google IT Services Limited. Okay, so these guys have set up the companies in India as per the poem. Okay, so they are liable to set the entity into India. These guys are getting the salary from Indian entity, which is not a relevant point for that is being taxed as per normal salary. Apart from that, these guys gets RSUs. Okay, these RSUs are being like given by the foreign company. So these RSUs are not given by Google Private Limited India. Okay, it is being given by Google Inc. Okay, so Google Inc. do not give the shares in demat account of Zerodha or Kite. They have their own account. So these accounts are called as foreign demat accounts or foreign depository. Okay, so they have a Morgan Stanley E-Trade account, they have a Fidelity account, they have an account of Charles Schwab. Okay, so these are the foreign accounts wherein the salary is being credited in the form of perquisite, that is called as shares. Okay, and but obvious, for example, if a person is having a 20 lakh ka salary and he is getting 20 lakhs as in perquisite component. Okay, the taxes on the both things will be roughly around
30%, if I consider a right straight away 30%, so the tax is gonna be 12 lakh. Okay. So out of cash component, 20 lakh, 12 lakh will be getting deducted, and only 8 lakh he will be getting in hand. Okay. It won't make any sense. Okay. So what these guys do is like, whenever the shares are being vested to the Indian person, okay, or an employee of Google, what these guys do is like they exercise in cash to cover option. Okay. So what this guy do is like, for example, Google Inc. gives 10 shares to an employee of India. Okay. What these guys do is like they exercise an option of sell to cover. Okay. So what is it sell to cover option means? A sell to cover options is basically wherein if you are getting shares from foreign company, these guys are deducting 10 of the shares. For example, the foreign INC has given 10 shares. Okay. And out of 10 shares, what those foreign MNC do is like, as per DTAA Act. So there is a source country, okay, and there is a contracting country. Okay. Source country is India, contracting country is US. Okay. So as per DTAA provisions, if any contracting country is giving an income to source country, okay, so it is the responsibility of source country to deduct the tax. Means India will be deducting the taxes. Okay. So if those guys are getting 10 shares, okay, so what Indian entity do is they sell 3 of these shares to recover the taxes. Okay. Here in the point, for example, in India there is a T+2 settlement of shares. For example, if the shares are being credited into your account today, if you buy some shares today, those shares get credited into your account after 2 days. Okay. So similarly, in US, there is a concept; those shares get vested within 3 days. I think there it depends upon the country and fidelity. Okay, so somewhere it's one, somewhere it's two, somewhere it's three. Okay, for example, if they are given 10 shares, those 10 shares get reflected into the demand after 3 days. Okay, and after 3 days, those shares are being sold. So these are the 3 shares which are being sold to cover your taxes. Okay, this is the point of capital gain. First it is being taxed at perquisite. Then if the 3 shares are sold, these things are treated as capital gain, wherein we take the TTBR and TTSR rate as per the capital gain calculation. Okay, mentioned in section series 50. Okay, of the capital gain. Okay, so we take TTBR TTSR rate for calculating those things. Okay, after the calculation has been done, the capital gain is being calculated. Okay, now the shares remaining are 7 shares, 3 shares are being sold. There can be a slightly capital gain or capital loss in that case. Okay, so if there is a capital gain, for sure we need to report that thing. Okay, there will be marginal capital gain. Okay, for example, I will give you an example, real example. Okay, so I have one employee, okay, who is getting shares from USA. Okay, he got 100 shares, okay, at the price of 10 rupee each. I'm considering rupee dollar as a rupee. Okay, so he has got 1,000 shares, 1,000 worth ka share. Okay, so 100 shares at 1,000 rupees he got. Okay, what he did, he sold his 3 shares. Okay, he sold his 30% shares to cover his taxes. Okay, when he sold his 30 shares, okay, the price went up to 101. Okay, so he got the shares at 300, he sold the shares at 330. So again, there is a when the shares are being sold to exercise the tax to cover option, there is a capital gain happening on that shares. We need to report that thing as in capital gain. This is one treatment. Okay, so let's see ahead how we're gonna do all those things, how to calculate and all those things. I will be guiding you on all these things in a very brief manner. Okay, so tax compliance for salary individuals, okay, who are getting foreign income. So there are two components. First is they are getting some salary, okay, which is a taxable income, plus those guys are getting foreign income. Okay, so RSUs and ESOPs are the foreign income. So if those are getting, then these provisions are applicable. Okay, so what is RSU? RSU is a motivation of the employee to work in the company. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ओके अब आरएसयू क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी में व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आरएसयू व्हाई दे हैव ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ आरएसयू ठीक है फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी
अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो, टू रिमूव द फीलिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, दोस कंपनी गिव देम एज इन शेयर्स। वो शेयर होल्डिंग दे देता है कंपनी में, ठीक है, एम्प्लॉय को। सो वो एम्प्लॉय को नहीं, क्या एक फीलिंग ऑफ ये आता है कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंपनी एंड आई एम हैविंग सम स्टेक होल्डरशिप इन द कंपनी। सो इसके लिए उनको आरएसयूज दे देता है। Okay, so this is the purpose behind giving the RSUs. अब what are ESOPs? Okay, ESOPs are like कि अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, अब कंपनी में वर्क कर रहे हो तो होता क्या है कि those guys give like an stock option to you. Okay, stock options क्या होते हैं? जैसे for example, if you are working in Google, okay, so those guys give an option to the employee कि आप Google के stocks purchase करते हो at 5% discount. For example, the share price is being like 100. Okay, those guys are given to purchase the shares at 95 rupees only. Okay, so this is an ESOP. अब जो ये 5 रुपए जो फ्री में मिला है, अगेन दिस इज एन परक्विजिट व्हिच इज टैक्स्ड अंडर सेक्शन 72. ओके, जो फ्री में कंपोनेंट दिया है 100 की चीज थी, ठीक है, इट वाज ऑफ रुपीज 100 which was being given to an employee at the rate 95. तो 5 रुपीज का जो भी डिफरेंस है दैट इज बीइंग टैक्स्ड एज परक्विजिट टू एन एम्प्लॉय का सैलरी. ओके, अगेन एंड 72. ओके, तो ये भी टैक्सेस का कंपोनेंट हमें इंक्लूड करना होता है. ओके, if this employee is selling these shares at 101, the cost of acquisition will be 95 or 100. It would be 100 because the difference 95 to 100, the guy has already paid the tax thereon. Okay, so this is basically about understanding RSUs and ESOPs. Okay, तो RSUs क्या होते हैं? एक कंपनी का शेयर होता है, ठीक है, जिसपे एक वेस्टिंग डेट होती है, ओवर अ फेज मिलता है, ठीक है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के. ओके, सो दोज डायरेक्टर्स आर लाइक बेसिकली गेटिंग द शेयर होल्डिंग. ओके, अब ये शेयर होल्डिंग वो एक दिन पे नहीं मिलता है कंपनी को, वो कंपनी को ओवर अ पीरियड मिलता है. ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को एक दिन में पूरा शेयर होल्डिंग दे दिया, लाइक जो एम्प्लॉय है उनको पूरा शेयर होल्डिंग एक दिन में दे दिया, ऐसा नहीं होता है. दोज गेट बीइंग वेस्टेड लाइक ओवर अ फेज ऑफ लाइफ. ओके, उनके फेज ऑफ लाइफ में वो वेस्ट होते हैं शेयर्स. ओके, अगर आप 5 साल वर्क कर रहे हो तो हर फेज में थोड़ा थोड़ा वेस्टिंग होते रहेगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन 10,000 stock units. So over a phase, the things will be getting granted to those people. Okay, so grant करती है company. Okay, and there is an vesting schedule. Okay, so these things are being taken care by the brokers and the company there. Okay, अब ESOPs मैंने जो बताया, these are being taxed when those are being exercised, and जो free का component होता है, वो free के component पे क्या होता है, वो free के component पे tax लग जाता है under the head 72, that is perquisite. Okay, so this is basic about what are RSUs and ESOPs. Okay, the most important thing, अगर कोई बंदे को, okay, if he is an employee of the multinational company, okay, if he is getting the salary from US, okay, as well as India, अब US से तो 17(2) में perquisites मिल रहा है. Okay, so those things are being not reported. देखो, there are two things. First is 17(2) का reporting, and another is like disclosing the same in FS schedule. Okay, so reporting has been done by the company itself in the form 16. Okay, but if you are not disclosing the same in the FS schedule disclosure, there is a flat penalty of 10 lakh rupees. Okay, and this is the gift given by the big shots of the India, like Vijay Mallya. Okay, those who flew away by taking the country's economy's money. Okay, so what these guys do was they used to like purchase. Vijay Mallya, why he like left the country then? Okay, he left the country because he has created parallel wealth in US. If he hadn't created the parallel wealth in US, he won't have left the India there. Okay, so these provisions are the gift of Vijay Mallya. Okay, he left the country, and Indian government was not knowing कि उसके पास कितने assets है US में. So this thing was being given by Vijay Mallya. Okay, so what happened actually was those guys were fleeing, and there was no provision in Indian Act कि we have to report the foreign shares. We have to report the foreign assets. Okay, there was no provision in India for reporting that thing. Okay, and was not made strict therein to like follow those guys. Okay, now if you are having a debt of more than 50 lakhs, you need to take a permission from RBI for getting the clearance on the same. Okay, so this is the thing therein wherein like those guys are responsible for this act.
Okay, so what happened is like failure to disclose a foreign asset income in the ITR can attract a penalty of 10 lakh rupees. Okay, अगर आपके पास foreign assets है, okay, and if those foreign assets are not been declared in your ITR, you are having a penalty of rupees 10 lakh, which is very risky for those guys, okay, who are not reporting the thing there. Okay, so it is important to disclose all foreign assets of income in your ITR. Okay, and if you're not disclosing the same, there is a penalty of 10 lakh rupees, which is being attracted by the like basically the Indian Money Black Act, and like second is Corruption Act, and third is Income Tax Act. Okay, so these are the three things which are being getting like liable to the person who are like fluing away their who are not disclosing their foreign assets into an ITR. Then okay. Okay, who should file the FS schedule? Now we are talking about FS schedule. FS schedule is a supplement in an ITR जहाँ पे अपने को सारे foreign assets disclose करना होता है. Okay, if you are a resident of India and you are having a foreign income, okay, or you are having a foreign assets, you are liable to disclose all these assets in the FS schedule. Okay, so if you are a tax resident of the India, okay, in the previous year, and you own a foreign asset or foreign bank account, or you have earned the foreign income during the previous year, okay, you are liable to fill the FS schedule. Okay. So what is FS schedule? FS schedule is a very brief supplement wherein we have to report the foreign accounts, the foreign assets, the foreign disclose, foreign holding, equities, debentures, debts, your bank accounts, your demat accounts, the FS schedule. Okay. If you are holding single dollar in your bank account in US, okay, so you need to disclose that thing into your ITR schedule. Okay. Many of the guys are purchasing the shares from IndMoney. Okay. इंड मनी एक इंडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप फॉरेन के शेयर्स परचेस कर सकते हो. Okay, so if you are purchasing those shares, okay, so you are liable to disclose the same into your FS schedule. Okay, for example, आप इंडिया में बैठ के यूएस के शेयर्स परचेस कर सकते हो. Yes, you can purchase, which is the platform in money brokers. There are many platforms wherein you can purchase those things. Okay, so for example, if you have purchased foreign shares, मानो आपने गूगल के शेयर्स परचेस करे. Okay, if you have purchased Google ka shares, okay, even if you are not an employee of that company, you are liable to fill that schedule. Okay, so every person who is having any foreign asset or foreign bank account or has earned foreign income, उसको FS schedule file करना mandatory है, and FSI, that is foreign source of income, file करना mandatory है. Okay, and the deadline to file this is the deadline of your ITR. So basically, those things are being mentioned in your ITR too. If you're having a foreign income, you have to but obvious file ITR too. Okay. So this is the thing wherein the compliances are being made strict for the reporting of the taxes. Okay. Apart from that, what is FS schedule and what does it include? Okay. It includes your foreign bank accounts. Okay. It includes, for example, if you are holding any bank accounts, okay, if you are having an ISN or you are having an IRN, okay, so you are liable to like show the things to in an FS schedule. Okay. If you have a foreign cash value insurance contract or annuity contract, if you have financial interest in any entity, immovable property, foreign custodial account, foreign equity account, your debt account, or you are a member of trust outside India, okay, or you are a beneficiary or settler, okay, accounts, you have a signing authority in US and other capital assets, including any foreign assets you have held. So you need to report these all things in FS schedule. Okay, and also it is not mandatory you should be a beneficial owner. You can also be a beneficiary. I will give you a simple example. Okay, for example, A has a son. Okay, A has a son. Okay, so A has a foreign asset in US. Okay, and he's transferring all the rental income to his son, who is liable to file the FS schedule, whether the son or the father. Father is a beneficial owner, okay, and son is a beneficiary. As per income tax law, okay, you have to, if either of the person is reporting the same thing, okay, in his ITR, then the other person is not liable.
अगर सन ने कर दिया है रिपोर्ट उसको एज इन फॉरेन इनकम, तो फादर को करने की जरूरत नहीं है. एंड इफ फादर हैज डिस्क्लोज्ड द सेम इनकम इनटू in his ITR, then son is not required. Okay, but clubbing provisions, all those things get applied, and all who beneficially understanding the genuine nature of the transaction, we need to determine whether those things are being reported or not in a very proper manner. Okay, so basically FS schedule is a simple thing wherein you guys have to report the foreign assets, the foreign equity, anything which is outside India has to be reported in foreign schedule. Okay. Okay, so I will give you what is FS schedule. We will have just a quick go through over that. Okay, so what does there are the clauses A1 to G for reporting the foreign assets in the FS schedule. Okay, so what are the those things? A1 A1 is the details of foreign depository held, including any beneficial interest at any time during an accounting period. Okay, so if you are having any bank account, okay, so you need to deposit, like report all those things into that bank account. Okay, and the same has to be reported into your FS schedule. Okay, so जैसे for example अगर आपके पास कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट है, ठीक है, अब फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स आपको A1 में अपलोड करना पड़ेगा. ठीक है, अब इन्होंने बताया डिपॉजिटरी अकाउंट्स. अब डिपॉजिटरी अकाउंट्स वेदर द डीमैट अकाउंट्स आर डिपॉजिटरी अकाउंट्स, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. अभी भी इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है डिपार्टमेंट ने. ठीक है, नॉर द इनकम टैक्स हैज गिवन एनी क्लैरिफिकेशन कि डिपॉजिटरी अकाउंट मतलब उसमें डीमैट अकाउंट भी आता है या फिर उसमें आपका सिर्फ बैंक अकाउंट ही आता है. डिटेल्स ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट्स हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड. अब कस्टोडियल अकाउंट्स होते क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर बीइंग डूइंग ट्रेड विद चाइना. ओके, तो चाइना ने कुछ गुड्स भेजे इंडिया में. ओके, अब ये गुड्स इंडिया में भेजे, ठीक है, बट हाउ दोस गाइज विल ट्रस्ट यू वेदर यू आर हैविंग अ जेन्युइन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और नॉट. तो उसके लिए फॉरेन बैंक्स गिवन कस्टोडियल सर्विस. अब कस्टोडियल सर्विस होता क्या है? बेसिकली यू हैव टू डिपॉजिट सम मनी इनटू अ परमानेंट, लाइक इट्स एन टेम्पररी अकाउंट. ओके, नॉट एन परमानेंट अकाउंट. तो टेम्पररी एक अकाउंट होता है. अगर ऐसे कोई टेम्पररी अकाउंट्स है आपके जिसमें आपने कुछ पैसा, लाइक इफ यू हैव डिपॉजिटेड एनी मनी देयर, you have to report those things into that thing also. Okay, details of foreign equity and debt interest. अगर आपका कोई इक्विटी या डेट इंटरेस्ट है या फिर इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इफ एनी इन एनी एंटिटी एट टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड. अगर आपके पास कोई भी इक्विटी है या डेट है फॉरेन कंपनीज का, ठीक है, तो वो भी आपको इसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा. Details of foreign cash value insurance contract or annuity contract held at any time during the relevant accounting period. Okay, so हुआ क्या था, एक मैं क्लाइंट का आपको स्टोरी बताता हूँ. ओके, so what happened was like he had taken loan from Indian bank. Okay, अब हुआ क्या, during his I will give you what was the scenario of that client. Okay, so he was having some house loan of 2 crore rupees. Okay, काफी strong client था. Okay, he was having a house loan of 2 crore rupees. Okay, and he used to frequently visit to Europe. Okay, उसका लग्जमबर्ग में he has an office in Luxembourg also. Okay, जो stock exchange है वहाँ का, तो he used to frequently travel there. Okay, so what happened was he had a loan in India and his family used to stay there in US. Okay, so what happened when he was traveling, but he was a resident of India, all the provisions of Indian income tax were applying. He was neither RONR, or he was not an ordinary resident, nor he was non-resident. Okay, he was an he was a normal resident. Okay, he has fulfilled all those criteria. On his journey to US, okay, he has taken some insurance therein. Okay, wherein उसको वहां पे एक हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड देयर. ओके, वहां पे उसका डेथ हो गया. ओके, सो ही गॉट इन कंपेंसेशन ऑफ रफली अराउंड 5 crore rupees. बट जहाँ पे उसका ये जो घर था, ओके, दैट लोन गॉट डिक्लेयर्ड एज एनपीए. ओके, सो दोज गाइज वेयर, इफ दोज थिंग्स आर रिपोर्टेड इनटू एन प्रॉपर मैनर, उनका वो घर भी सीज नहीं होता था, एनए भी नहीं होता था अगर वो एफएस शेड्यूल भर देते थे. ठीक है, but however we managed to bring that funds into India. Okay, and settle those things in a very proper manner. Okay, now any beneficial interest in entity held,
अब beneficial interest, what is that? If you are having any foreign asset, okay, जैसे आपने घर लिया and you are getting a rental value from that. If you have any beneficial interest, kind of you are holding any equity, okay, you are having some controlling power the entity, okay. Details of immovable property held, okay. Now it's the common practice in India, okay. Many guys are investing in the foreign real estate, okay. वहाँ का फॉरेन रियल एस्टेट थोड़ा काफी लाइक इट्स अ स्टेबल थिंग देयर, ओके, एंड द लोन्स आर वेरी चीप, ओके, एंड वहाँ पे रेंटल यील्ड इज क्वाइट हायर देन इंडिया, okay. So those guys are purchasing the things in EMI in US and like repaying that thing via loan, okay. Just for example, if I want to purchase a land in US, okay, so I purchase a land in US wherein I'm getting a rental yield of roughly around 10%, okay. जैसे 1 करोड़ का घर खरीदा है तो आई एम एनुअली गेटिंग 10 लाख रुपीज एज एन रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, और मैं वो प्रॉपर्टी जो खरीदता हूँ वो रेंट पे लोन पे खरीदता हूँ यूएस में. There is a simple procedure. If you are having an ISN and if you are a proper filer in India, okay, you get loan easily, okay. तो ISN is basically the foreign PAN card, okay. अगर आपके पास ISN है तो आप, और बहुत उसका प्राइस भी सस्ता होता है, ISN निकालने का $350-400 का प्राइस होता है, okay. So what many guys are doing, they are purchasing the foreign assets in US, okay. अब होता क्या है, वहाँ पे लोन बहुत चीप है, ठीक है, इतने चीप लोन्स है, okay, they are charging 2-3% as an interest rate, okay, but the rental yield is roughly around 10%. So they are leveraging that thing into US, okay. Pata nahi, like why those guys are not that really strong in, like in India, every person, every CA is like, we can call it as in Banya mind, okay. Yes. So we guys are doing that thing, but those guys are not aware of this opportunity. Might be aware, bhi, okay, but they don't have these interest of leveraging the benefits, okay. तो many people are doing this thing. So ऐसी कोई immovable property है, या फिर if you are having any financial interest, you need to report that. Details of any other capital asset held. Okay, just for example, many people in India are now purchasing capital assets in US. Okay, so like I have clients who have like purchased the Uber cabs in, and they have given that thing on rent in US. Okay, and they're earning a very good amount from that. Okay, the car ka cost is 10 lakh rupees in वहाँ पे like in US the RTO charges are quite cheap. Okay, so इतना उधर कॉस्टली नहीं होता है बिकॉज दे एवरीथिंग रिकवर फ्रॉम दी सोशल सिक्योरिटी टैक्स, ओके. सो इंडिया में जैसे इनकम टैक्स होता है, वहाँ पे फेडरल टैक्सेस होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में सेस कलेक्ट होता है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी टैक्स का एसएसटी का लाइक कलेक्ट करते हैं, ओके. सो दोज गाइस डू नॉट चार्ज इन हेवी आरटीओ चार्जेस, ओके. So वहाँ पे like people are purchasing the cars and all those things and running that thing on rental things, okay. So these are the capital asset. If you are having any capital asset, you need to disclose that thing, okay. Details in which you have a signing authority at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A2D, okay. जैसे और कोई इसके अलावा आपकी कोई भी ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ साइनिंग अथॉरिटी, ओके. अब साइनिंग अथॉरिटी कैसे हो सकता है? For example, you are having a startup, okay, with an US guy, okay. आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको इक्विटी नहीं है, बस आपका दिमाग लगा रहे हो, देयर इज नो रिलेशनशिप, बट यू हैव द साइनिंग अथॉरिटी. लाइक अगर कोई चेक्स वगैरह लगते हैं वहां पे, या फिर आपका जो है पावर ऑफ अटर्नी ले रखा है फॉर डूइंग द फॉरेन ट्रांजेक्शन, ऐसा भी अगर आपका कोई चीज है तो यू नीड टू रिपोर्ट दैट. अगर कोई ट्रस्ट आउटसाइड इंडिया क्रिएटेड है, वी नीड टू रिपोर्ट ऑल दोस थिंग्स. इसके अलावा और कोई बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम है, ठीक है, यू नीड टू रिपोर्ट ऑल दोस थिंग्स इनटू एफएस शेड्यूल, ओके. सो दिस इज द शेड्यूल वेयर वी नीड टू रिपोर्ट, ओके. तो मैं इसका एक बता देता हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है. अब आरएसयूज के लिए जो होता है मेनली A3 एंड डी होता है, ठीक है. अब A3 क्या है आपका? A3 is this, okay. So this is your A3, okay. So A3 and D is for and D. These are the things we need to report into FS schedule if you are getting RSUs and ESOPs. इसको भी देखते हैं डिटेल में, okay. So reporting of RSUs in FS schedule details includes company assets, okay. Company name of the foreign entity डालना होता है, वो डिटेल में देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में अपन, okay. Yes. So we have to report the name of the foreign entity, okay. Nature of assets क्या है, date of vesting, mention when the RSU is being vested, okay. FMV क्या है, tax credit कैसे ले रहे हैं, all those things we need to report there, okay. Then what is FS schedule, okay. FS schedule, what does FS schedule include, okay. तो FS schedule includes, जैसे अपन ने अभी सारी 1 by 1 चीज देखी थी, वैसे ही आपको ITR में मिलता है, okay.
So we need to report these things into an ITR. Okay, give me a minute. I'm having a notable. Okay, fine. So what is in FS schedule? FS schedule mein we have already seen like there is A1 to G. Okay, so yes, A1 में क्या क्या होता है? Details of foreign depository account size. Okay. देन सेकंड इसमें देखो आपको कंट्री नेम डालना होता है, कंट्री कोड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, एड्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिप कोड, नंबर, अकाउंट स्टेटस, ठीक है. सी दीज आर द थिंग्स वी नीड टू रिपोर्ट इनटू अ सैलरीड क्लास ऑफ पीपल्स अकाउंट्स. ओके, तो आप इमेजिन करो अगर कोई पर्सन को सैलरी है फॉरेन इनकम से, ठीक है, जैसे कोई पर्सन जैसे एवरी गूगल गाय, ओके, एवरी गूगल गाय, एवरी माइक्रोसॉफ्ट गाय, ओके, एवरी लाइक आप मॉर्गन स्टैनली ले लो, ओके, आप फिडिलिटी ले लो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, इनके कोई भी एम्प्लॉय रहने दो, इनको ये एफएस शेड्यूल फाइल करना मैंडेटरी. अगर नहीं करते तो देयर इज अ फ्लैट पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपए. तो ये सारी चीजें इन लोगों को दे हैव टू मैंडेटरी कंप्लाई विद ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो देयर इज लाइक A1, A2, A3. मेनली वी आर फोकसिंग ऑन A3 एंड D. ओके, अब सबसे मेन जो प्रॉब्लम जाती है इसमें करेंसी रेट कैसे कन्वर्ट करना होता है. ओके, सो वी हैव टू डू एंटायर थिंग्स कैलकुलेशन. सो वी बेसिकली लाइक सी A1 से G तक अपने को देखना है. ओके, सो फर्स्ट इज A1. ओके, व्हाट डज A1 कंसिस्ट ऑफ? A1 कंसिस्ट ऑफ योर डिटेल्स ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी. मतलब आपके कोई बैंक अकाउंट्स है तो यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद अकाउंट नंबर. ओके, ऑल्सो द स्टेटस. स्टेटस मतलब ऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव है, ठीक है, ये स्टेटस. ओके, अकाउंट ओपनिंग डेट डालनी होगी, पीक बैलेंस भी डालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस, और उस पर कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ. ओके, अब हर if any employee out of India, okay, is like going to work, okay, तो ये सारी चीजें उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है. ओके, so these are the mandatory things. So and this is the complete new thing. Like Indian guy, like normal CAs ये अवेयर ही नहीं है इस चीज के बारे में कि ये सारी चीजें एफएस शेड्यूल में रिपोर्ट करना होता है. ओके, देन देयर इज एन A2. A2 इज लाइक बेसिकली कस्टोडियल अकाउंट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है. देन देयर इज अ इक्विटी इंटरेस्ट, दैट इज A3. ये सारे क्लाइंट्स को रिपोर्ट करना होता है अगर उनके पास कोई शेयर होल्डिंग है तो, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कंट्री नेम डालना होगा, कंट्री कोड डालना पड़ेगा, नेम ऑफ एंटिटी, एड्रेस ऑफ एंटिटी, जिप कोड, ठीक है, नेचर ऑफ एंटिटी, डेट ऑफ एक्वायरिंग द इंटरेस्ट. अब इतना सारा डेटा अपने को अक्यूमुलेट करके डालना होता है. ओके, so this is like very niche area of practice you can really pursue if you want to have this thing in your life. Okay, so like आपके practice में आपको ये चाहिए तो this is very important in new area. Okay, तो डेट ऑफ एक्वायरिंग द इंटरेस्ट, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग वैल्यू और ग्रॉस अमाउंट कितना टोटल पेड क्रेडिटेड था, तो ये सारी चीजें रिपोर्ट करनी होती है. ओके, देन देयर इज अ डिटेल्स ऑफ फॉरेन कैश वैल्यू, इंश्योरेंस, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंश्योरेंस, डेट, इक्विटी, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करनी होती है. दिस इज द बेसिक शेड्यूल. ओके, यू कैन हैव एन वॉक थ्रू. ओके, मैं ओपन कर देता हूँ, आप एक बार वॉक थ्रू कर लो. दिस इज एफ शेड्यूल. ओके, एक बार वॉक थ्रू कर लो. इट्स वेरी सिंपल. ओके, अगर इसमें किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क इन चैट. ओके, डिटेल्स ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट हेल्ड. ओके, ये सारी डिटेल्स. ओके, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स इन विच यू हैविंग इन साइनिंग अथॉरिटी, ये भी डालना होता है. ओके, एंड दिस इज द FSI. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू रिपोर्ट. ओके, यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज ऑफ नाउ इज कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है एंड हाउ टू रिपोर्ट द थिंग्स. ओके, मेन दिक्कत जो आती है कि इसको करेंसी को कैसे एक्सचेंज रेट लेना है, कौन से दिन का एक्सचेंज रेट लेना है. तो इसके लिए एक आई हैव प्रिपेयर्ड वन शीट. ओके, इफ एनीवन इज इन नीड, लाइक आई विल शेयर इट आफ्टर द वेबिनार देन. ओके, मेरे पास एक शीट बनाई है, उसमें मैंने क्या क्या इंटीग्रेट कर रखा है. आई हैव इंटीग्रेटेड द एक्सचेंज रेट,
companies high rate, low rate. Okay, so if you like enter कि I'm having like 400 shares of Google, okay, और मेरा acquisition cost डाल दिया, तो ये बाकी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेती है वो शीट. ओके, सो कंट्री कोड डाल दिया, कंट्री नेम डाल दिया, कंट्री कोड आपको मेंशन किए हुए रहते हैं, शेड्यूल में मेंशन हुए हुए रहते हैं, जैसे यूएस के लिए 2 है, ठीक है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए कोई अलग कोड है, ठीक है. नेम ऑफ एंटिटी, जैसे कंपनी का नाम डाल दिया, गूगल वगैरह ये सारी कंपनीज का नाम, एड्रेस, उसका जिप कोड, ठीक है. अब जो एक्वायरिंग इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें तो सिंपल है, कॉस्ट डालनी होती है, लेकिन जो कॉस्ट है वो अपन ने फॉरेन में परचेस किया है शेयर. अब फॉरेन की कॉस्ट तो अपन डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट वी गाइस डू इज लाइक वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट्स. ओके, अब कोई शेयर आपको वेस्ट हुआ है, शेयर हुआ है $40 पे वेस्ट. ओके, अब ये वेस्ट हुआ है 31 मार्च को, ठीक है. अब कौन सी डेट का आपको वेस्टिंग टीटीबीआर टीटीएसआर का रेट कन्वर्शन डालना होगा, तो द टीटीबीआर टीटीएसआर रेट बोलता है कि यू नीड टू ऐड द प्रीवियस डे का क्लोजिंग रेट, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग रेट. ओके, सो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग रेट अपने को उसमें डाल के क्लोज करना होता है. पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑटो कैलकुलेट हो जाती है, हमने वो शेड्यूल बनाया है जिसमें आपका ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, ऑटोमेटिक पकड़ लेता है. And closing value is basically कि 31st December, and this thing are being reported up to 31st December only, ठीक है. But like in India, it's a financial year, okay. It starts from 1st of April and it ends on 31st March, okay. But in US, they follow the calendar year. तो आपको ये देखो, आपको हर जगह दिखा होगा कि यहाँ पे ending on 31st December लिखा है. ओके, सो वी नीड टू रिपोर्ट ओनली अप टू 31st December. अगर एक्स्ट्रा रिपोर्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा रिपोर्ट करते तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस ओनली. ओके, तो दिस इज द शेड्यूल लेवल. ओके, डॉक्यूमेंटेशन सबसे मेन जो है कि आरएसयू ग्रांट एग्रीमेंट. ओके, तो आपको वेस्टिंग समरी डाउनलोड करनी होती है, ठीक है. तो वेस्टिंग समरी हाउ वी गोना डाउनलोड इज लाइक, जैसे आप कोई भी जीरोधा का ओपन करते हो तो जीरोधा में कंसोल होता है और आपको सारी चीजें रिपोर्टिंग रहती है, ठीक है. वैसे ही इन लोगों के फॉरेन अकाउंट्स होते हैं, देयर इज अ फिडेलिटी, मॉर्गन स्टैनली एंड चार्ल्स श्वाब, वेयरइन दे हैव द एंटायर डिटेल्स. वहां से आपको वेस्टिंग शेड्यूल डाउनलोड करना होता है, ठीक है. देन द वेस्टिंग शेड्यूल डाउनलोड करके वी हैव सम फॉरेन टैक्स स्टेटमेंट्स. ओके, जैसे इंडिया में 26 एएस होता है, वहां पे 1042 एस होता है, जहाँ पे आपको दिखता है कि आपका टैक्सेस कितना डिडक्ट हुआ है. ओके, सो देयर इज 1042 एस. वहाँ पे हर इनकम का अलग अलग टीडीएस फॉर्म होता है, ठीक है. जैसे इंडिया में होता है ना 26Q भी होता है, ओके, 26QC, 26QA. ओके, सो देयर आर वेरियस फॉर्म फॉर दोस थिंग्स. सो बेसिकली 1042S इज द फॉर्म वेर इन ऑल थिंग्स आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है फॉरेन कंट्री में वो दिख जाता है. करेंसी एक्सचेंज रेट, प्रूफ ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें लाइक वी हैव टू रिपोर्ट देयर. ओके, तो ये सारी चीजें हमको क्लाइंट से कलेक्ट करनी होती है फॉर प्रिपेयरिंग एन एंटायर थिंग. ओके, तो आरएसयू ग्रांट, वेस्टिंग शेड्यूल, फॉरेन टैक्स स्टेटमेंट्स, ओके, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ओके, तो टीटीबीआर टीटीएसआर के हिसाब से रेट लेना होता है, प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर फॉरेन टैक्सेस. अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे आपका डीटीडब्ल्यू का एग्रीमेंट डिटरमाइन होता है. अभी मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री में आपको जो है फॉरेन शेयर्स मिल रहे हैं, तो उसका जो टैक्सेशन है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में होता है. जो कंट्री में सोर्स कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट था, सोर्स कंट्री वाज यूएस और कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री इज इंडिया, तो इंडिया में ही उसका सारा टैक्सेशन होएगा, ठीक है. तो ये कहाँ लिखा है, ये डीटीडब्ल्यू में लिखा है, ठीक है. और अभी टैक्सेस कहाँ डिडक्ट होंगे, इंडिया में डिडक्ट होंगे, ठीक है. लेकिन जो फॉरेन शेयर्स है वो अभी आपके हाथ में है क्या, नो, दैट आर बीइंग हेल्ड इन योर फॉरेन डीमैट अकाउंट. ओके, अब फॉरेन डीमैट अकाउंट में आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड इंडिया में टैक्सेबल है कि यूएस में टैक्सेबल है. So again we have to read the DTAA Act. Okay, DTAA says कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जो है लाइक टीडीएस डिडक्ट होएगा या फिर सोर्स स्टेट में डिडक्ट होएगा, इधर ऑफ द कंट्री में डिडक्ट हो जाएगा. लेकिन 1042S इज द फॉर्म जहाँ पे अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो अपफ्रंटली गवर्नमेंट इज डिडक्टिंग द टैक्सेस इन फेडरल. ओके, फेडरल मतलब यूएस में आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है. ओके, अब यूएस में आपका टैक्स डिडक्टेड हो गया है तो वो पैसा अब इंडिया में आने वाला है. अब वो पैसा जब इंडिया में आएगा तो वापस उस पे इंडियन इनकम टैक्स लग जाएगा, ठीक है. तो सेम इनकम इज बीइंग चार्ज ट्वाइस टू द टैक्सेस. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल उस पे टैक्स इंडिया में भी लग रहा है, उस पे टैक्स यूएस में भी लग रहा है, ठीक है. अब ये जो टैक्सेस है, ये टैक्सेस क्या होते हैं, ये टैक्सेस का क्रेडिट, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए डिविडेंड मिला, उसमें से 25% इज बीइंग डिडक्टेड इन यूएस एंड 35% इज डिडक्टेड इन इंडिया. तो आपके हाथ में कितना आया है,
ठीक है, 25, 30, 60 तो डिडक्ट हो गया, 40 आज में 100 रुपए के डिविडेंड में। तो ऐसे के लिए उन्होंने DTAA के एक्ट स्पेसिफाई करे। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्सेस इज द फॉर्म जो आपको नेसेसरीली उससे लेना पड़ेगा फॉर क्लेमिंग द FTC क्रेडिट, ओके, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के। देखेंगे ये सारी चीजें क्या होती है। करस्पॉन्डेंस विद टैक्स अथॉरिटीज, अगर आपने वहां पे रिटर्न भी फाइल किया है, देखो एक होता है 26 ईयर्स और अपने इंडिया में क्या होता है, जैसे प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर फॉरेन टैक्सेस, इसके लिए मैंने बोला 26 ईयर्स। करस्पॉन्डेंस विद टैक्स अथॉरिटीज, अगर वहां पे अगर आपने कोई रिटर्न भरा होगा, मतलब इंडिया का ITR 2 या फिर ITR 3 आपने कुछ भरा होगा, तो वो भी आपको लगेगा। तो बेसिकली वहां पे 1040 NR करके होता है, जैसे इंडिया में ITR होता है नॉन रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब है DTAA का टैक्सेशन। अब DTAA क्या बोलता है? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया and many multiple countries wherein if the income is being received from the foreign country, उसका taxation इंडिया में कैसे होना वो डिटरमाइन करता है DTAA। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गेटिंग अ डिविडेंड फ्रॉम US, okay, and that dividend is being taxed in US as well as in India, okay, तो वो डिविडेंड आपका 100 रुपए का डिविडेंड है। अब उसमें से आपका 25 रुपए तो टैक्स US में डिडक्ट हो रहा है और 35% जो डिडक्ट हो रहा है वो इंडिया में डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपका जो है 60 रुपए तो टैक्स ही डिडक्ट हो गया, इन हैंड 40 रुपए ही आए। तो DTAA क्या बोलता है? DTAA एग्रीमेंट्स है बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है। इंडिया के करीब करीब 170 लाइक टोटल कंट्रीज में से ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के साथ DTAA है। जो कंट्रीज के साथ DTAA नहीं है उस केस में लाइक थोड़ी दिक्कत हो जाती है फॉर टैक्सेशन। फिर वैसे कंट्रीज के साथ ट्रेड ही नहीं होता इंडिया का, ओके। सो विद एवरी कंट्री इंडिया हैज अ DTAA। जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, चाइना बोलो, यूरोप बोलो, ठीक है, US बोलो, US इज पार्ट ऑफ यूरोप और यूके, तो जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है इनके साथ इनका DTAA। अब DTAA क्या है? DTAA एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन किया होता है कि आपकी ये इनकम मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कौन से कंट्री में टैक्स होएगी फॉर अवॉइडिंग ऑफ टैक्सेस, ओके। और कभी कभी क्या होता है, ये एंटिटीज नहीं क्या DTAA को अच्छे से लाइक गो थ्रू नहीं करती और वो टैक्सेस जो है लाइक सी दे आरंट अवेयर, ओके। अब DTAA का बेनिफिट अपने को उठाना है, ओके। अब बेनिफिट अपने को उठाना है, सो दोस गाइज आरंट अवेयर कि वेदर दिस गोना फाइल रिटर्न इन इंडिया और नॉट, ओके। दे आरंट अवेयर। So those guys are of fearing of कि like in case अगर this like if this person doesn't file, India will be telling us कि आपने जो उनका टैक्स काटा है give us that back because that guy has not filed a return in India. Okay, so for avoiding that practices, what those guys do is like they deduct the TDS upfront in US. ओके, तो फॉर्म 1042S होता है जिसमें लाइक वो TDS डिडक्ट हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब डिविडेंड दिया तो वो लोग डिविडेंड पे 1042S से टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं एट द रेट 25%, ठीक है। तो ये सारे दिक्कतें आ रही थी। सो देयर केम अ बेनिफिट ऑफ DTAA wherein the key benefits are it reduces the tax burden, it encourages the foreign investments and it promotes the economic cooperation, okay। So these are the things that like DTAA do. So what is the importance of DTAA? अब DTAA क्या होता है, ठीक है? It allows the taxpayer to claim relief for the taxes paid in one country against payable in another. Okay? एक कंट्री का जो टैक्स है वो दूसरे कंट्री के लिए, like for example, if you have paid taxes in one country, it allows to claim the benefit in another country. बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है? कंपनी जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ साइन करते हैं, that are called as bilateral agreement. Residential criteria, it is being calculated as per the section 6 of income tax act, okay। अब रेसिडेंस वाला जो है 180 डेज से ज्यादा स्टे रहना चाहिए प्रीवियस 6 मंथ्स में, वो प्रीवियस 10 ईयर्स में, वो वाले सारे क्राइटेरियाज में होते हैं, ठीक है। 180 डेज और मोर से ज्यादा इंडिया में है तो बेसिक कंडीशंस RONR ROR, ओके। तो रेसिडेंशियल क्राइटेरिया डिटरमाइन करना पड़ता है फॉर क्लेमिंग द DTAA। मैक्सिमम केसेस में DTAA के प्रोविजन तब लगते हैं जब वो रेसिडेंट होता है इंडिया का, ठीक है। तो उस केस में ही लगते हैं मैक्सिमम प्रोविजन, ठीक है। अभी मैं सिंपल बताया था आपको, एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग अ सैलरी, ओके। अब सैलरी मिल रही है आपको US से और आपको शेयर्स भी मिले हैं US से, ठीक है। अब US से शेयर्स मिले हैं तो उसका तो टैक्स जो है वो इंडिया में डिडक्ट हो गया एज पर DTAA एग्रीमेंट। लेकिन अब वो US के शेयर्स पे आपको डिविडेंड भी मिल रहा है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ मेजर स्टेक होल्डिंग, ओके, मैं जैसे एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्सन के लाइक अराउंड 300-400 शेयर्स है, ओके। अब 400 शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज बेसिकली मीन्स कि आप 1,000 करोड़ रुपए होल्ड कर रहे हो यूएस में, एंड यूएस में माइक्रोसॉफ्ट गिव्स अ फ्रीक्वेंट डिविडेंड, okay, and you're getting a dividend, okay, and that dividend is amounting to roughly around 3 lakh rupees. अब 3 लाख रुपीस पे वहां पे यूएस में टैक्स डिडक्ट हो जाता है अंडर 1042S, ओके। तो 25% से टैक्स डिडक्ट हो जाता है और रिमेनिंग जो पैसा है वो इंडिया में आता है, ओके। तो आउट ऑफ 3 lakhs 25% दैट इज 75,000 इज बीइंग डिडक्टेड एज टैक्सेस एंड रिमेनिंग अमाउंट कम्स टू इंडिया। अब इंडिया में 3 लाख रुपए वापस टैक्सेबल हो जाएगी, हाँ वापस टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट स्लैब रेट्स। अब स्लैब रेट फॉर एग्जांपल पकड़ता हूँ मैं, वो क्लाइंट था 39% के स्लैब में, ओके। सो अगेन इन इंडिया 3 lakhs पे 39% टैक्सेस लग गया। सो इन इफेक्टिवली ही माइट बी गेटिंग अराउंड 20% 30% मनी इन इंडिया ओनली, ओके। उसको 60-70 हजार रुपए मिल रहा है, ओके। सो टू क्लेम द बेनिफिट देयर ऑन, ओके, we have like income tax have brought in form that is called as form 67, wherein जहाँ पे आपने जितना टैक्स यूएस में पे कर दिया है उसके अलावा ही रिमेनिंग टैक्स आपको इंडिया में पे करना है, ओके। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पेड 25% टैक्स इन यूएस और इंडिया में आपको जो है 35% पे करना था, तो आपको रिमेनिंग 10% ही पे करना है, और ये पे करना होता है एक फॉर्म 67 के थ्रू, ओके। अब वो फॉर्म 67 के बारे में देखते हैं, व्हाट इज फॉर्म 67 है। फॉर्म 67 एक फॉर्म होता है जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होता है फॉर द फॉरेन इनकम जिसपे टैक्स डिडक्ट हो गया है फॉरेन। व्हाट इज द पर्पस टू अप्लाई फॉर टैक्स क्रेडिट और एग्जेम्पशन ऑन फॉरेन इनकम। तो जो इनकम पे आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है यूएस में, वो इनकम पे आपको जो टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, वो एज एन रिफंड क्लेम करना होता है इंडिया में, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था, आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिला जिसमें से 25% होल्ड कर लिया था यूएस ने, एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज रिडीम टू इंडिया, एंड इंडिया अगेन 35%। तो व्हाट दिस गाइस सजेस्ट इज लाइक व्हाट यू पे इज द रिमेनिंग डिफरेंस। आप डबल डबल टैक्सेशन पे मत करो, okay. So basically you have paid 25% in India and you are chargeable to tax in India at 10%, तो आपको जो है इंडिया में 10% से ही पे करना है, दैट इज अप टू 10% ही पे करना है, एडिशनल 10%। तो 1 लाख में से आपने 25% वहां पे कर दिया और 10 रिमेनिंग 10% इंडिया में पे कर देना। फॉर दिस द फॉर्म 67 इज यूज। और इसको कैसे फिल करते हैं, कैसे करना है, आई विल बी गाइडिंग, ओके। बेनिफिट्स बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाएगा एंड यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ टैक्स क्रेडिट, ओके। हेल्प्स टैक्स पेयर टू रिड्यूस देयर ओवरऑल टैक्स लायबिलिटीज एंड इट्स गिव्स द सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग रिलीफ अंडर डीटीए डबल ए प्रोविजन, ओके। व्हाट इज टैक्स क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट इज बेसिकली जो टैक्स आपने यूएस में पे कर दिया है उसको बोलेंगे टैक्स क्रेडिट। It facilitates claiming credits for taxes already paid in foreign jurisdictions. Okay, so इसके लिए कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 67 होता है। अब हाउ टू फाइल फॉर्म 67? ओके, टू फिल द फॉर्म 67 एकदम सिंपल क्राइटेरिया, आपको वेबसाइट पे जाना है और ई फॉर्म्स में आपको फॉर्म 67 फिलअप करना है। अब ये कैसे फिलअप करना होता है मैं गाइड करूंगा आपको, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स एंटिटी विद फॉरेन इनकम एंड टैक्स पेड अब्रॉड, ओके। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होता है? जैसे इंडिया में फॉर्म 26 एस होता है, वैसे यूएस में मैंने बताया था 1042S होता है। तो 1042S या आपको फॉर्म सबमिट करना होता है while filing the form 67. कब फाइल करना होता है? You have to file form 67 before filling your ITR, okay? That is 31 जुलाई के पहले फिल करना होता है। एंड इसका रेफरेंस नंबर आपको ITR में भी देना होता है, जो एक्नॉलेजमेंट आपने भरी है फॉर्म 67 की उसका रेफरेंस आपको ITR में भी देना होता है, ठीक है। अब फॉर्म 67 में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं? देयर आर लाइक 4 सेक्शंस, पार्ट ए, पार्ट बी, वेरिफिकेशन एंड अटैचमेंट, ओके। अब एक एक देख लेते हैं। पार्ट ए में क्या होता है? ओके, पार्ट ए में वो पर्सन का नेम होता है, ओके, पैन कार्ड होता है और इनकम का डिटेल्स होता है, ठीक है। अब ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पार्ट ए में जो है ये दिस इज पार्ट ए। बेसिकली पार्ट ए में लाइक आपको किधर से कितना इनकम आया है वो दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डालना होता है? नेम ऑफ द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द कंट्री मैंने यूएस डाल दिया, ठीक है।
अब यूएस डाल दिया, अब सोर्स ऑफ इनकम तो सारे हेड्स के नाम होते हैं, सैलरी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, तो वो डालना पड़ेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया को भी आपको कन्वर्जन रेट करके प्रॉपर टीटीबीआर टीटीएसआर ऑफ द प्रीवियस मंथ का आपको क्लोजिंग रेट लेना है और उससे आपको कन्वर्ट करके इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया जितना है उतना रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब वहां पे कितना टैक्स पे किया है वो डालना है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था वो डालना है, ठीक है। देन टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया, ठीक है। अगर आप वो इंडिया में पे करते थे उसका डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाला अपन ने, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज 100 रुपीज, हो गया। टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया इज 25 रुपीज एंड टैक्स पेड इन इंडिया इज 35 रुपीज, ओके। आर्टिकल, जैसे आर्टिकल होता है, जैसे डिविडेंड का आर्टिकल है आर्टिकल 10, ओके, तो ये डालना पड़ेगा। रेट एट विच डबल टैक्सेशन, डीटी डबल में कोई रेट मेंशन है तो वो डाल दो, 25% मेंशन होगा तो 25%, और यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको आप कितना क्रेडिट क्लेम कर रहे हो। तो 25 रुपीज आपका 100 रुपए में से 25 आपने ऑलरेडी पे कर दिए, तो आपको 25 रुपीज का क्रेडिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 25 रुपीज का इधर ऑटो कैलकुलेट करके हो जाएगा, ठीक है। ये फिल करने के बाद पार्ट बी में अगर आपको कोई लॉसेस वगैरह है तो वो इधर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। वेदर क्रेडिट ऑन फॉर एनी फॉरेन टैक्स हैज बीन क्लेम्ड अंडर द डिस्प्यूट, अगर आपने कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, अगर वो डिस्प्यूट में है तो वो, अगर डिस्प्यूट में है तो वो भी आपको उधर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी एक डिस्प्यूटेड केस का इतना बड़ा एग्जांपल है मेरे पास, लाइक many of the person has approached to me for this thing as in consultation, okay। और मैं बताता हूँ हुआ क्या था। Down the line there was an acquisition by Broadcom and VMware, okay। तो VMware was company which was get acquired by the Broadcom, okay। अब Broadcom ने acquire किया किसको, VMware को, okay। अब VMware, what those guys did was like, अब वो पूरे शेयर्स उनको ट्रांसफर हो जाएंगे VMware के। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज एन एम्प्लॉय ऑफ VMware, जहाँ पे मेरे पास VMware के 100 शेयर्स थे, ओके। व्हाट दिस VMware गाइस डिड वाज कि ये VMware के जो शेयर्स थे, अब ब्रॉडकॉम के शेयर्स मिल जाएंगे इनको इनके बदले, हाँ ब्रॉडकॉम के शेयर्स मिल गए, लेकिन VMware ने क्या किया, VMware ने 50% बोला कि हम 50% शेयर दे देंगे और 50% हम आपको उसका पैसा दे देंगे। अब बताओ ये कैपिटल गेन में जाना चाहिए आपको 50% जो पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपके 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स 100 शेयर्स में से 50 शेयर्स जो है ब्रॉडकॉम के कन्वर्ट हो गए और 100 शेयर्स रिमेनिंग 50 शेयर्स के लिए यू गॉट इन कैश कंपोनेंट, ओके। अब ये कैश कंपोनेंट इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, ओके। बट व्हाट दोस गाइस डिड वाज, मॉर्गन स्टैनली का ई-ट्रेड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ई-ट्रेड ने व्हाट दे डिड इज, rather than disclosing the same thing as in capital gain या फिर बायबैक कंसीडर करने के अलावा उसको कंसीडर कर लिया एज इन डिविडेंड एंड दोस गाइस डिडक्टेड 25% एज इन फ्लैट टैक्सेस। तो ये इशू वाला बन गया था, इसके लिए इट इज बीइंग रिटन दैट विद द क्रेडिट फॉर फॉरेन टैक्स हैज बीन क्लेम्ड अंडर एनी डिस्प्यूट, अगर इफ देयर इज सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट वी नीड टू रिपोर्ट दैट थिंग आल्सो, ओके। देन लाइक एक सिंपल डिक्लेरेशन होता है, ये डिक्लेरेशन फाइल करना होता है और वो अटैचमेंट करनी होती है जो 1042S फॉर्म होता है कि आपको प्रूफ देना होता है कि आपका यूएस में टैक्स डिडक्ट हो गया है। सो वी नीड टू अटैच दैट थिंग्स फॉर फिलिंग द फॉर्म 67 देयर, okay। So this is all about like how we are going to like do the DDAA transactions and all those things in a very proper manner, okay। And yes, like this is the important area of practice wherein you can excel the things in a very good manner, okay। So iske alawa like if anyone is having, Rohit, like you can like proceed with if you have any questions and like we can do the follow up things then, okay। यस सर। सर आपने बताया कि 67 अपने फाइल करा, तो इसका आईटीआर में बेनिफिट कैसे मिलेगा वो बता सकते हैं? आईटीआर में बेनिफिट कैसे मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने सिंपल बताया था कि लाइक आईटीआर में लाइक इफ यू हैव 100 रुपीज का डिविडेंड, ओके, फ्रॉम फॉरेन शेयर, ओके। अब जब वो 100 रुपए जो है 100 रुपए आपको जो है जब मिला था तब यूएस में टैक्स डिडक्ट हो गया था उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे 25% से टैक्स डिडक्ट हो गया था। अब वो जो 25% टैक्स वहां पे डिडक्ट हुआ है, अब इंडिया में 100 रुपए जब आएगी वापस 35% से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट में हो, ठीक है। तो जब अपन फॉर्म 67 फाइल करते हैं तो फॉर्म 67 में अपन उसका एफटीसी ले लेते हैं, अपन बताएंगे वहां पे कि अपना 35% जो है 25% यूएस में टैक्स विथहोल्ड हो गया है और रिमेनिंग जो टैक्सेस है इंडिया में 10 रुपए उतना ही पे करना होता है,
राइट। नहीं तो जैसे फॉर्म 67 फाइल करा तो ये ऑटो रिफ्लेक्ट होगा अपने आईटीआर में? नहीं, आईटीआर में भी एक 90 का शेड्यूल होता है जहाँ पे आईटीआर में लाइक आप लाइक कौन सा यूज करते हो, लाइक टैक्स सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो, जीनियस कंप्यूटैक्स? और कंप्यूटेक्स मतलब। हाँ, कंप्यूटैक्स में आप जाओगे ना, तो कंप्यूटैक्स में आपको एक टैब मिलेगा जहाँ पे आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट डाल सकते हो, ठीक ओके है? आपका वो चालान जो होता है ना, क्रिएट चालान में आपको जाना होता है, वहाँ पे आपको 9091 का रिलीफ मिलता है, तो वो ओके रिलीफ में आपको वो एंटर करना होता है। यस। राइट राइट। ठीक है, तो मैम एक क्वेश्चन और था, आई हैव वन क्वेश्चन मोर। कैन यू एक्सप्लेन दी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवार्ड डेट, वेस्टिंग डेट एंड एक्सरसाइज डेट अच्छा, इन देखो आरएसयू? अवार्ड डेट, हाँ हाँ, तो अब अवार्ड डेट क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड क्लास ऑफ पर्सन है जो गूगल में वर्क कर रहा है, ठीक है? ठीक है अब उसका जो अवार्ड डेट होता है, वो जब ज्वाइन कर रहा है तब उसको कंपनी बोलती है कि हम 10,000 आरएसयूज आपको देंगे, 10,000 शेयर्स कंपनी के देंगे, ठीक है? ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज अवार्ड डेट। ठीक है। उस दिन उसको सब अवार्ड हो गया था, हाँ ठीक है? अब ठीक है वेस्टिंग डेट, अब वेस्टिंग डेट क्या होता है? वेस्टिंग डेट बेसिकली होता है कि उसको अब वो 100 शेयर्स वेस्ट हो रहे हैं, हर हर महीने 100 शेयर्स वेस्ट हो रहे हैं, तो दिस ठीक इज है। कॉल्ड एज वेस्टिंग डेट। ओके, अब एक्सरसाइज डेट क्या होता है? जब वो सेल करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज डेट। इसमें जो ऑनरशिप मिलेगी वो उसको कब मिलेगी? वेस्टिंग डेट पे ओनरशिप मिलेगी। मतलब जिस दिन वेस्ट हो जाएगा वो उस शेयर का ऑनर हो जाएगा, राइट? बराबर बराबर। लेकिन सर कुछ कंपनीज में है ना ऑनरशिप आ रही है एक्सरसाइज डेट के बाद, वेस्टिंग डेट पे कोई ऑनरशिप नहीं आ रही। नहीं नहीं, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्शंस होते हैं, ईसॉप्स होते हैं, ईसॉप्स में एक्सरसाइज डेट होती है, ईसॉप्स के अंदर एक्सरसाइज डेट होती है, ऑप्शन आरएसयूज के अंदर एक्सरसाइज डेट नहीं होती है। अगर आप आरएसयूज का देखोगे तो आरएसयूज में वेस्टिंग डेट ही होता है और सेटलमेंट डेट होता है। ईसॉप्स की केस में एक्सरसाइज डेट आता है, क्योंकि ईसॉप्स में अपने पास ऑप्शन है मुझे परचेस करना है कि नहीं है। आरएसयूज और ईसॉप्स दोनों डिफरेंट चीज है, ओके ठीक है? तो आरएसयूज में आपको वेस्टिंग एक्सरसाइज डेट रहेगा ही नहीं, ईसॉप्स के अंदर आपको एक्सरसाइजिंग डेट रहेगा। ओके हम्म। राइट राइट। ठीक है सर। और एक चीज और बताइए सर, मतलब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, मतलब कंपनीज की पॉलिसीज, हमें हर कंपनी की पॉलिसी लेनी पड़ेगी रिस्पेक्ट टू आरएसयू और ईसॉप्स के लिए कि वो किस तरीके से उनको ग्रांट हो रहा है और वेस्टिंग एक्सरसाइज? अगर आप देखोगे तो वो पूरा ग्रांट शेड्यूल देते हैं, ठीक है? हाँ एक हाँ वो पूरा ग्रांट का शेड्यूल देते हैं। अभी ग्रांट का शेड्यूल कैसे होता है, जैसे आप कोई कंपनी में ज्वाइन हुए, गूगल में ज्वाइन हुए, अब हम्म गूगल में ज्वाइन हुए तो वो डे वन पे बताते हैं कि आपको 1 फरवरी को 10,000 शेयर्स मिलेंगे, फिर अगले साल 1 फरवरी को 10,000 शेयर्स मिलेंगे, हम्म फिर अगले फरवरी को और 10,000 शेयर्स हम्म मिलेंगे। अब ये शेयर्स, इनका ये अवार्ड डेट रहेगा, अवार्ड डेट एक ही रहता है, फिर उसका वेस्टिंग जो है हर महीने महीने अलग 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 होता है, ठीक है? हम्म अब इसका जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये कहीं न कहीं उनको सिस्टम में मैंडेट करके रखना पड़ता होगा। ये हम्म इंडिविजुअली एक-एक शेयर तो नहीं देते होंगे, तो ये हम्म पकड़ते हैं ब्रोकर्स को, ठीक है? हम्म जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ज़ीरोधा है, हम्म एंजेल है, वहाँ हम्म पे है चार्ल्स श्वाब, ठीक है? हम्म मॉर्गन स्टैनली, फिडेलिटी, ओके? तो ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये फिडेलिटी, इनके साथ ये टाई अप होता है कंपनी का कि हमारे वेस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको ग्रांट करना है। तो हम्म। हर कंपनी का अलग पॉलिसी होता है, जैसे किसी का मॉर्गन स्टैनली के साथ टाई अप होता है, किसी का फिडेलिटी का टाई अप होता है, लेकिन ओवरऑल द प्रोसेस एंड द कांसेप्ट रिमेन सेम। ओके सर, एक चीज और सर बताइए। अ, हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था, मतलब एक क्लाइंट को आरएसयूज भी मिल रहे थे और एक एससीयूज भी मिल रहे थे। मतलब एक तो था वो जो फ्री वाला जो आरएसयू जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और दूसरा और था ईसॉप्स, एससीयू। हाँ ठीक है। ईसॉप्स। हाँ ईसॉप्स राइट। तो सर जिस दिन उसने आरएसयू वेस्ट करा, मतलब उसके साथ क्या हो रहा था सर, उसको होल्ड करने का उन पर राइट नहीं था, उनको होल्डिंग के लिए वो नहीं था, परमिशन नहीं है। जिस दिन उन्होंने एक्सरसाइज करा उसी दिन उनको सेल आउट होना है उनका हाँ। शेयर। हुँ। तो देखो, उसके 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? सेल ऑन वेस्ट और लाइक टैक्स टू कवर, ओके? सेल टू हम्म कवर, ठीक है? हम्म तो उनका जो है सेल ऑन वेस्ट वाला ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज़ किया होगा, ठीक है? अगर सेल ऑन वेस्ट का उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज़ किया है, तो बट ऑब्वियस सेल ऑन वेस्ट के समय होता क्या है, जब शेयर मिला तब वो सेल हो जाएगा ऑटोमैटिक। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक तो है? तो है ना वो अब ऑप्शन होता है एम्प्लॉयी के पास कि उसको कौन-सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर गलती से, और ऐसा कोई कंपनी पॉलिसी नहीं रख सकता है कि उसको कंपल्सरी सेल ऑन वेस्ट कर दिया है।
ऐसा कोई कंपनी पॉलिसी नहीं रखता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए लॉस रहता है, क्योंकि उसके शेयर्स बेच रहा है तो उनके शेयर्स की जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो ऐसा कोई कंपनी पॉलिसी नहीं रखता है। 100% आई एम फॉर श्योर दैट उसने जो सिस्टम में ऑप्शन लगा के रखा होगा, उसने सेल ऑन वेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा होगा। तो आप वो क्लाइंट को बोलो कि आप वो ऑप्शन चेंज करें या फिर एचआर से कंसल्ट करें। क्योंकि सर इसमें क्या हो रहा है, उसको तो हायर टैक्स लग के आ रहा है, और वैसे रेट जो है कैपिटल गेन तो उसको हुआ ही नहीं ना इस केस में तो। 100% ये केस में भी कैपिटल गेन होता है। नहीं सेटलमेंट सर, डेट और वेस्टिंग डेट अलग होता है ना। नहीं मतलब सेम, जैसे आज उसको फॉर एग्जांपल कोई शेयर सेल करना है तो सेम डेट पे एक्सरसाइज हो जाएगा, सेम डेट पे सेल हो जाएगा। तो तो जो भी टाइमिंग गैप तो होता है ना। हाँ, मतलब 3-4 दिन एक का दो टाइम। मतलब हार्डली अगर 0.1% डॉलर भी है तो भी वो गैप तो है ना, 0.1% डॉलर का गैप। नहीं इसमें जैसे सर एक चीज बताइए कि फॉर एग्जाम्पल उसने आज ना 100 शेयर एक्सरसाइज करे, 100 शेयर एक्सरसाइज करे, लेट्स से FMBC 500 रुपीज, ठीक है। तो उसके अकाउंट में क्या होता है, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, और हायर स्लैब का टैक्स रेट करके उसके अकाउंट में आ जाता है। करेक्ट सर। और ये जो रूट हो रहा है ना, ये कंपनी के पेरोल के थ्रू रूट हो रहा है, तो वो फॉर्म 16 के थ्रू टैक्स लग के आ रहा है उसमें। नहीं, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल में वर्क कर रहे हो, हाँ ठीक है। तो गूगल में वर्क कर रहे हो तो आपको कंपनी ने बोला कि हम सैलरी के साथ आपको आईएसयूज भी देंगे। ठीक गूगल है। उसको जीएसयू बोलता है, ठीक है। हाँ जी, ये सू बोलता है, तो राइट। तो आपको ये क्या बेसिकली 100 शेयर्स जो है 100 शेयर्स आपको मिले थे गूगल के, ठीक है। और उनका वेस्टिंग डेट था हर महीने की 1 तारीख को, 1 तारीख, ठीक ठीक है। है। ठीक है, तो आपको 10-10 शेयर्स मिल रहे हैं हर हम्म, 1 तारीख को, और आपका 10 महीने ऐसा वेस्टिंग शेड्यूल चलेगा, ठीक है। ठीक है। अब आपके हाँ। पास दो ऑप्शन है, वेस्ट ऑन सेल, ठीक है, हम्म, और दूसरा ऑप्शन है आप होल्ड करोगे, दैट इज टैक्स टू कवर का ऑप्शन एक्सरसाइज करके होल्ड करोगे, ठीक है। ठीक दोनों है। भी केस में आप भले ही सेल ना करते हो तो भी आपको कैपिटल गेन अप्लाई हो जाएगा। अब कैसे बताता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो जीएसयूज मिल रहे हैं वो मानो 1 तारीख को मिल रहे हैं, ठीक है। ये हम्म, तुरंत बेच नहीं सकती है कंपनी, सेम डेट को कभी सेल ही नहीं करती, क्योंकि उसका हम्म, सेटलमेंट ही नहीं हुआ है अकाउंट में, हम्म, हम्म, ठीक है। अभी इंडिया में कैसा है, आप इंट्राडे ऑफ कर रहे हो, सेम डे पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हो पोजीशन, ठीक है। अगर उन्होंने वैसा कर दिया तो उनके लिए रिस्की हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सेटल होने देते हैं, और सेटल होने के बाद 2 दिन बाद शेयर्स को सेल करते हैं। अब चेक करना, ठीक है। जो भी टैक्स टू कवर का ऑप्शन है तो उन्होंने आपके 3 शेयर सेल कर दिए, ठीक है। जब आपको राइट, मिला था राइट। रेट चल रहा था 1 रुपया, और जब आपके हम्म, सेल हुए तब रेट हो गया था 1.02, तो आपको हम्म, 0 पैसा इंटू 3 का तो गेन हो गया। तो ये हम्म, कैपिटल गेन में रिपोर्ट करना होता है। और जो ओके, 10 रुपए है आपके, ये ऑलरेडी टैक्स हो गए 17.2 में एज अ परक्विजिट, तो आपको राइट, राइट। रिमेनिंग जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वही टैक्स करवाना पड़ेगा। ओके, ओके, ठीक है सर, ठीक है। और सर एक चीज बताइए, अभी आपने कोई ऐसा कोई फेस करा है, कोई डिपार्टमेंट से नोटिस वगैरह, इस पे FA पे कोई नोटिस आया हो किसी क्लाइंट को? 100% अभी 4 क्लाइंट्स का चल रहा है, जनरली नहीं है क्या। ये नोटिस कब आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई पर्सन जो है फॉरेन से ह्यूज पैसा रिमिट कर रहा है, हमारे केस हम्म, में लाइक एक पर्सन है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, ओके। ही इज द हम्म, डायरेक्टरेट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। वो बंदे का सैलरी था 15 करोड़ रुपए का पैकेज था उसको, ठीक है। हम्म, उसने आज दिन तक आरएसयूज का रिपोर्टिंग नहीं किया था। अब हुआ क्या, अब उसने आरएसयूज का रिपोर्टिंग नहीं किया, उसका 17.2 में तो टैक्सड हो गया है, हम्म, ठीक है। जैसे आप देखोगे 17.2 में उस पर टैक्सेस लग गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये हाँ, अगर एफएस शेड्यूल में रिपोर्ट करता था, ठीक है, तो उसका अभी फॉर एग्जांपल जब उसको वेस्ट हुए थे शेयर्स, वो 10 लाख रुपए के वेस्ट हो गए थे, जिसका आज वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गया है, हाँ, ठीक है। अगर वो एफएस शेड्यूल भरता था, ठीक है, तो होता क्या था उसका, वो हर साल में क्या पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताता था, इनिशियल वैल्यू बताता था, डेट ऑफ एक्वायरिंग इंटरेस्ट बताता था, इनकम टैक्स के पास डेटा रहता था कि इसको ये होल्ड कर रहा है भाई ऐसी चीज, और ये हर बार दिखा रहा भी है हमको। अब हम्म, उसने क्या किया, आरएसयूज का रिपोर्टिंग अभी तक किया नहीं था, और उसको आरएसयूज जो 17.2 में दिख रहे थे, जो 17.2 में परक्विजिट दिखता है ना, वो हम्म, उसका टोटल किया डिपार्टमेंट ने, बोले तेरे को 17.2 में आपको लाइक 10-10 लाख रुपए मिले, 50 लाख रुपए मिले थे देखो। हाउ यू आर शोइंग दैट यू हैव रेमिटेड 4 करोड़ रुपीज फ्रॉम यूएस। हम्म, तो तेरा कहीं ना कहीं वहां पे इनकम था, यू हैवंट डिस्क्लोज दैट थिंग, हम्म, ठीक है। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेजा था। ओके। हाँ,
रेमिटेंस ऑफ फंड्स की केस में नोटिस भेजता है कि इफ यू आर हैविंग अ फॉरेन एसेट व्हाई यू हैवंट फिल्ड द डेटा इन पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसको पूरा लाइक यस दे हैव बीन लाइक टेकिंग द एक्शन ऑन दैट थिंग इन अ वेरी सीरियस मैनर। और जनरली ये जो केसेस है लाइक नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में ये सेंट्रलाइज आईटेड जो सीनियर लेवल अथॉरिटीज है उनके पास आता है केस, बिकॉज दोज गाइज जो नॉर्मल एओज और ये है दे आरंट अवेयर अबाउट व्हाट डीटी डबल ए इज लाइक एंड ऑल दोस थिंग्स आर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रोविजन। ओके, तो ये जो बहुत रेयर केसेस में आती है नोटिस गिने चुनों को आती है, लाइक आई हैव 3 केसेस गोइंग ऑन जहाँ पे एफएस शेड्यूल का उनको इनकम टैक्स का पेनल्टी नहीं ब्लैक मनी एक्ट का पेनल्टी लगा है। ठीक है, तो ब्लैक मनी एक्ट बोलता है कि इफ यू आर हैविंग एनीथिंग इन फॉरेन यू नीड टू डिस्क्लोज दैट। कई लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं यूएस में, हमारे मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं यूएस में क्योंकि यूएस का मार्केट काफी स्टेबल होता है। ठीक है, इंडियन मार्केट्स आर वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो यूएस में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना दे आर लाइक सेलिंग द ऑप्शंस। जैसे इंडिया में लाइक वी बाय ऑप्शंस, तो यूएस में लाइक इंडिया में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मार्केट स्टेबल होने के कारण दे आर लाइक एक्सट्रीम कॉर्नर्स के ऑप्शन सेल कर देते, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, बाय सेलिंग दीज थिंग्स। ओके, तो व्हाट दिस हैपेंस इज लाइक ये सारी चीजें वी आर नॉट रिपोर्टिंग। ओके, सो इसका रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन लाइक इफ यू आर ब्रिंगिंग दैट इनकम बैक इनटू इंडिया। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन दैट कि अगर मतलब आपने बताया कि ये जो ईसॉप्स और आरएसयूज है ये हमें वी हैव टू रिपोर्ट इन A3 और D, तो मतलब ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि A3 में जाएगा या D में जाएगा? हाँ, अब A3 में जाएगा कि D में जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि A3 में देखो क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट। अभी मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डी में बोला है कि आप जो है डी में डिटेल्स ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे अभी नहीं क्या एकदम डिटेल में मैं जाऊँ, ठीक है, तो जीएसयूज और अमेजोन के शेयर्स, ठीक है, अगर जीएसयूज है ना तो जीएसयूज अमेजोन जो है वोटिंग राइट्स देता है शेयर होल्डर्स को, जीएसयू जो है वो वोटिंग राइट्स नहीं देता है, तो उसको मैं कैपिटल एसेट में क्लासिफाई करता हूँ। जहाँ पे वोटिंग राइट्स है, जहाँ पे वोटिंग राइट है कंपनी को, अब डिपेंड्स ऑन क्लास शेयर्स हो गए, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स मिलता है। ठीक है, जैसे अब डायरेक्टरेट अमेजोन का कोई एम्प्लॉई है तो उसको क्लास 3 शेयर्स मिलते हैं, लेकिन वही अगर अमेजोन का डायरेक्टरेट लेवल का क्लाइंट है ही इज गेटिंग क्लास 1 शेयर्स जहाँ पे उसको वोटिंग राइट्स भी मिलता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसको वोटिंग राइट है कि नहीं है, तो इट डिटरमाइंस द इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, यू आर हैविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन कंपनी टू वोट, तो इक्विटी उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वोटिंग राइट ही नहीं है तो यू वोंट बी क्वालिफाइंग फॉर एन इक्विटी, सो यू ओनली हैव एन कैपिटल एसेट जहाँ पे आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वोटिंग राइट है कि नहीं। अगर वोटिंग राइट है तो मैं A3 में रिपोर्ट करूंगा, वोटिंग राइट नहीं है तो मैं D में रिपोर्ट करूंगा। अगर कोई पर्सन है जिसने इन मनी से शेयर्स परचेस करे हैं तो उसको A3 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। राइट सर, ओके सर, ठीक है, एनी क्वेरीज? ठीक है सर, यू में कंटिन्यू। हाँ, मेरा हो गया है, लाइक और कोई क्वेश्चन है तो अपन वो हेड करते हैं, तो वी कैन क्लोज इट। ओके सर, नहीं एक सेकंड रुकिए सर। हाँ ठीक है, हाँ, एक सर अभी जो क्रिप्टो का चल रहा है, तो इस क्रिप्टो इज पार्ट ऑफ फॉरेन एसेट? नो, क्रिप्टो इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन एसेट्स, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज करेंसी। और करेंसी अभी तक इसके लिए कोई लेजिस्लेशन ही नहीं बना है, अभी उसको सिर्फ कैपिटल गेन में रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको फॉरेन एसेट्स में नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि उसका सोर्स ही नहीं पता है कि कहाँ रिपोर्ट करना है, तो क्रिप्टो इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन एसेट्स के लिए। अच्छा सर, आप एक चीज बताइए, मान लीजिए कि क्लाइंट कभी क्या होता है कि मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया, मतलब उसने अपन हमको डिटेल दी, उसने ठीक है अपने बेस्ट एफर्ट्स करके डिटेल उसने एक्वायर करी कंपनी से, और गलत रिपोर्ट हो गया, कुछ फिगर कुछ शेयर मतलब कुछ अपना जो एफए शेड्यूल है वो गलत रिपोर्ट हो गए, तो उसमें क्या पैनल एक्शन कुछ हो सकता है कुछ? देखो, ये डिस्क्लोजर्स है, हाँ, ये कोई लाइक ये रिपोर्टिंग है, ये टैक्सेशन नहीं है, इस पे कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई चीज गलत भी रिपोर्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको नहीं है क्या, आप अगले ITR में सुधार लें। ओके,
जैसे इसमें क्या होता है, आपको सारी डिटेल्स हर साल फर्निश करनी होती है। जैसे हम्म, ये साल उसके कोई शेयर्स है तो वो अगले साल भी फर्निश करने हैं। अगर राइट। गलती हो गई है तो आप रिवाइज रिटर्न तो फाइल कर ही सकते हैं, और बहुत ही एक्सट्रीम गलती है, 1 करोड़ का आपका डायरेक्ट 10 करोड़ हो गया है, तो फिर तो हाँ, आपने रिवाइज करके सुधार लेना चाहिए गलती को। ठीक है? ओके, और ये बेसिक सप्लीमेंट होता है। सर हाँ, सर सप्लीमेंट होता है आईटीआर का, ये हम्म, एडिशनल आईटीआर का सप्लीमेंट होता है, तो ये अटैच हो जाता है। ठीक है? और सिर्फ फॉर्म 67 भरने से होता नहीं है, फॉर्म 67 का रेफरेंस नंबर भी देना होता है, रेफरेंस जब नंबर। आईटीआर भरता है। हाँ, जैसे आप कंप्यूटर टैक्स देखोगे, कंप्यूटर टैक्स में आप फॉर्म्स में जाओ, फॉर्म्स में 67 आप चेक करना, वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, ट्रांजैक्शन एड्रेस, जैसे फॉर्म 10 आई ये डाल रहे हैं अपन अभी, ठीक है? वैसे ही फॉर्म 67 का आपको डिटेल्स अपलोड करना होता है। ओके सर, ओके। हम्म। अच्छा, ये फॉर्म 67 मतलब कोई रिटर्न लेट हो जाए तो आफ्टर ड्यू डेट भी फाइल हो सकता है? आफ्टर ड्यू डेट फाइल हो सकता है, लेकिन उसका रेलेवेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को रिटर्न को रिवाइज करके फिर वो फॉर्म में अटैच करना पड़ेगा। जैसे 10 आई है पहले फाइल होएगा कि फॉर्म आईटीआर पहले फाइल होगा, पहले फॉर्म 10 आई है फाइल करना पड़ेगा। तो आपका जो क्रेडिट है जो आपने ले रखा है वो लैप्स हो जाएगा, तो फॉर्म 67 भर के ही आप क्रेडिट ले पाओगे नहीं, 90 मतलब 91। आईटीआर अपन ने फाइल ही नहीं करी, मतलब ड्यू डेट के बाद अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म 67 फाइल कर सकते हैं? 100% फाइल कर सकते कर सकता है, हैं। और वो मिल इवन जाएगा आप उसका प्रीवियस, हाँ, बेनिफिट मिल benefit? जाएगा। फिर सर ये क्वेरीज थी जो अपने डिस्कस हो गई है, एंड थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन यस यस, चलो and वेलकम। your vast knowledge on RSU and ESOP, sir. We थैंक will यू। definitely grateful to you for this wonderful session, and we will take care all the thing which you described to us. Extremely thank थैंक you, sir. यू। Thank you so वेलकम। much.